السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 1990 کے اوائل کی، جب ایک نو عمر سکلین نے لکشمی چوک کے علاقے میں کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ ظریف میموریل کرکٹ کلب سے بنیادی چیزیں سمجھیں۔ سکلین کے دونوں بڑے بھائی کرکٹ اچھی کھیلتے تھے، انڈر 19 تک گئے مگر قومی ٹیم تک نہ پہنچ سکے۔ سکلین کے بھائیوں کو لگا کہ لڑکے میں سپارک ہے، اس لیے پہلے اسے وکٹ کیپنگ کروائی اور پھر فاسٹ بولنگ، مگر دونوں میں عدم دلچسپی کے بعد انہیں آف سپنر کی حیثیت سے ٹیم میں کھلایا گیا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے سکلین نے ابتدائی دنوں کو یاد کیا اور بتایا کہ ایک میچ میں بحیثیت آف سپنر انہوں نے ایک اوور میں 32 رنز کھائے، جس کے بعد انہیں جگہ جگہ چھیڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رمضان کپ کا میچ تھا جو ہم اس دور میں 20 اوورز کا T20 کی طرح کھیلتے تھے۔ ایک بار کافی رنز کھانے کے بعد گھر واپسی تک ہر کوئی مجھے 32 رنز کھانے والا بولر کہہ کر تنگ کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے ٹھانی کہ ایسی چیز کا سہارا لوں جو صرف میری ہو، جیسے عمران خان کا ان ڈپر مشہور تھا، عبد القادر کی گگلی مشہور تھی۔ میں نے بھی دعا مانگی مجھے بھی کچھ ایسی ہی چیز مل جائے۔ یہیں سے سکلین مشتاق کے دوسرا کی شروعات ہوئی، جس نے سچن سے لے کر مارٹن تک دنیا کے بہترین بلے بازوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ وہ متعدد انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر ٹیبل ٹینس کی بال سے سپن کرنے کی پریکٹس کرتا تھا۔ 3 سال میں نے ایک ایسی گیند پر کنٹرول حاصل کر لیا جو آف سپن کی طرح کرائی جاتی تھی۔ موومنٹ لیگ سپن کی جیسی ہوتی تھی، میری انگلیاں چھل جاتی تھی، مگر میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اور پھر سکلین مشتاق نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر، سلیکٹر اور تقریباً ہر لیول پر کوچنگ کرنے والے ہارون رشید، جنہیں دنیا شاہد آفریدی کو متعارف کروانے کی وجہ سے جانتی ہے، سکلین مشتاق کو ٹیسٹ ٹیم تک پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید نے بتایا کہ یہ سن 1993-94 کی بات ہے، جب وہ انڈر 19 ٹیم کے کوچ تھے تو پاکستان بھر سے جتنی بھی کرکٹ ایسوسی ایشنز تھیں سب سے کہا گیا تھا کہ 10 بچوں کی فہرست دیں۔ کوئی 7 ایسوسی ایشنز نے 70 بچوں کے نام دیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈیفنس کے ساؤتھ اینڈ کرکٹ کلب میں نے ان 70 بچوں کو جمع کیا اور حسیب احسن کی سرپرستی میں سلیکشن کمیٹی نے ان میں سے بہترین بچوں کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے اگلے دن ایک دبلا پتلا لڑکا آیا اور درخواست کی کہ اسے بھی آزما لیا جائے۔ اس کا نام تھا سکلین مشتاق۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے صبح آنے کے لیے کہا تاکہ اس کی بولنگ بیٹنگ کو جانچ سکوں۔ حسیب احسن، ظہیر عباس اور شفیق پاپا صبح آئے تو میں نے ان کو بھی کہا کہ یہ لڑکا ایسوسی ایشن کے ذریعے نہیں آیا مگر ہے بڑا زبردست۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ حسیب احسن خود ایک آف سپنر تھے۔ وہ سکلین کے دوسرا سے چونک گئے۔ ہم نے اسے یوتھ ٹیم میں شامل کیا اور اس نے دوسرے ہی میچ میں 4 وکٹیں لے لیں، جس میں کریگ میک ملن کی وکٹ شامل تھی۔ اس کیمپ سے نکل کر وہ انڈر 19 میں آیا اور دورہ نیوزی لینڈ میں صرف 14 کی اوسط سے 18 وکٹیں حاصل کیں۔ پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں ظہیر عباس سکلین کو اپنے ساتھ PIA لے گئے اور PIA جانے کے بعد ان کا سابقہ پڑ گیا وسیم اکرم اور موئن خان سے۔ پاکستان کے سابق کپتان موئن خان نے BBC سے گفتگو کے دوران بتایا، موئن خان نے کہا کہ سکلین میرے بچوں کی طرح کہہ لیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھ لیں۔ میں ہی تھا جس نے PIA کے سلیکشن ٹیم کے ساتھ اسے پہلی دفعہ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ پر دیکھا۔ ایک منفرد صلاحیت کا حامل سپنر تھا۔ اس کا یہ دوسرا جو تھا بہترین بال تھی، کیونکہ اس پر بڑے آرام سے کوئی بھی بڑے سے بڑا کھلاڑی ڈسٹریکٹ ہو سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سکلین جیسا بولر میری ذاتی کارکردگی کے لیے بہت آئیڈیل تھا، کیونکہ اس کی بولنگ پر ہی میرے ون ڈے میں سب سے زیادہ سٹمپس تھے۔ میں بحیثیت وکٹ کیپر جب دل چاہتا تھا اسے دوسرا کروانے کے لیے کہتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ بیٹسمین کے پیر کس طرح چل رہے ہیں، تو میں سکی کو اشارہ کر دیا کرتا تھا۔ ٹیسٹ ڈیبیو سن 1995 میں سکلین نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اپنے دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے اروندہ ڈی سلوا اور ارجنا رانا ٹنگا کی اہم ترین وکٹیں حاصل کر لیں۔ اروندہ 2 گیندوں پر 0 اور ارجنا گولڈن ڈک پر بولڈ ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں نائٹ واچ مین کی حیثیت سے آزمایا گیا۔ سکلین اس دور میں ٹیسٹ ٹیم میں مسلسل جگہ نہ حاصل کر سکے، لیکن جب بھی کھیلتے کھل کر کھیلتے۔ شیخو پورہ میں وسیم اکرم کے ساتھ 313 رنز کی تاریخی پارٹنرشپ ہوئی، یا سری لنکا کے خلاف کولمبو ٹیسٹ میں 58 رنز 9 وکٹیں۔ انہیں بلے سے بھی جب بھی موقع ملے انہوں نے مایوس نہیں کیا، البتہ ون ڈے ٹیم کے بغیر نامکمل تھی۔ سن 1996 کے عالمی کپ کے بعد سکلین مشتاق چھا گئے اور سن 1996 اور 1997 میں سال میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر بن گئے۔ وہ تیز ترین 100 وکٹیں لینے والے پاکستانی پہلے سپنر بنے، ساتھ ہی تیز ترین 250 وکٹوں کے ریکارڈ پر اپنا قبضہ جمایا۔ سن 1996 میں دورہ آسٹریلیا میں ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، جب انہوں نے سلیم ملک کے ساتھ شراکت قائم کر کے انڈیا کے خلاف کینیڈا میں کھیلے گئے سہارا کپ کے میچ میں فتح حاصل کی۔ تب سے انہیں ایک قابل بھروسہ
टेल एंडर भी समझा जाने लगा। दिसंबर 1996 में सकलैन ने पाकिस्तान की पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में जारी सहफरीकी सीरीज में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलीड में 5 विकेटें हासिल करके उन्हें होम ग्राउंड पर शिकस्त दी और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। जब पाकिस्तान टीम सन 1999-2000 में ऑस्ट्रेलिया गई तो इंडिया को शामिल करके एक और सहफरीकी सीरीज हुई, जिसमें इब्तदाई 2 मैचों में सकी ने ब्रिस्बेन के क्राउड को जगह से ना हिलने दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जब वो 34वें ओवर में बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान का स्कोर 103 रन था और 7 विकेटें गिर चुकी थीं। पहले वसीम अकरम के साथ 24 रन की इनिंग्स और फिर आखिरी 7 ओवर में वकार यूनिस के साथ 50 से ज़ायद नाकाबिल शिकस्त रन जोड़कर उन्होंने पाकिस्तान को एक मुनासिब टारगेट देने में मदद फराहम की। 185 के ताकों में ऑस्ट्रेलियन टीम 140 भी ना कर सकी और पाकिस्तान की कामयाबी में सकलैन के 5 चौकों से लदे नाकाबिल शिकस्त 37 रन ने कमाल कर दिया। अगले ही रोज़ उन्होंने बैटिंग के सिलसिले को वहीं से जोड़ा और इंडिया को परदेश में फतह से दूर रखा। इस बार भी वो 34वें ओवर में ही बैटिंग करने आए, मगर अब की बार स्कोर 120 था, टारगेट 196 का था और वसीम अकरम की जगह यूसुफ बैटिंग कर रहे थे। जब यूसुफ 63 रन बनाकर आउट हुए तब भी पाकिस्तान को जीतने के लिए 7 ओवर्स में 43 रन दरकार था। साथ एक बार फिर वकार यूनिस का था। सकलैन ने यहाँ लगातार दूसरे सीनियर्स बैट्समैन का रोल निभाया और यूसुफ के आउट होने के फौरन बाद श्रीनाथ को छक्का लगाकर अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और सकलैन ने कामयाबी के साथ सिंगल लेकर इंडिया को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। शाबाश सकी, शाबाश यू आर सिक, उल्टी फेंक, खड़ी हो जाए, दूसरा करो, शाबाश, ये सब आवाज़ें मेरी उम्र के हर क्रिकेट के शौकीन ने इस्तेमाल की हैं। मोइन खान की आवाज़ में इन सदाओं ने सबको इस स्पिरिट में ढाल दिया था जिसमें पाकिस्तान खेल रहा था। सकलैन ने एक रोज़ा मैचेस में 2 हैट्रिक की हैं। एक स्पिनर का हैट्रिक करना इस दौर में जो शेर लाने के मुतरादिफ था। दोनों हैट्रिक जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, एक पेशावर में 1996 में जबकि दूसरी 1999 के आलमी कप के मैच में। दोनों में विकेटों के पीछे गाइड करने के लिए मोइन खान मौजूद थे। उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि सकलैन दूसरों से अलग क्यों था। सकी एक मुनफिद बॉलर था, मेंटली स्ट्रॉन्ग था, फिजिकली फिट। वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ था और बहुत सारी जिम्मेदारियां इससे निभाई जा सकती थीं। बड़ों की बात भी सुनता था। ये चीज़ें होना किसी भी बड़े प्लेयर के अंदर बहुत अहम होती थीं। ये सब इसके अंदर मौजूद थी। मैंने जब भी इसको विकेटों के पीछे से मशवरा दिया, इसने इस पर अमल किया और इसका फ़ायदा हुआ और टीम को बड़ी फतूहात मिली। दोस्तों, एक रोज़ा क्रिकेट में सकलैन का रिकॉर्ड अजीम स्पिनर शेन वॉर्न जैसा ही है। शेन वॉर्न की सकलैन से सिर्फ 5 विकेटें ज़्यादा हैं जबकि मैचों का फ़र्क 25 का है। शेन वॉर्न की औसत एवरेज 26 के करीब है जबकि सकलैन की 22 से भी कम है। सकलैन की 6 मरतबा 5 विकेटों की कारकर्दगी के मुकाबले में शेन वॉर्न सिर्फ एक बार ही 5 विकेटें ले सके हैं। शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में सकलैन की कामयाबी का एतराफ़ करते हुए कहा था कि सकलैन इकोनॉमिकल भी है और 7 विकेटें भी लेते हैं, खासकर एक बाहर निकलती गेंद से जिसे बेशतर बैट्समैन समझ ही नहीं पाते, खासकर इंग्लिश बैट्समैन जिन्हें बाहर जाती गेंद को समझने में वैसे ही मुश्किल होती है। मोइन खान के मुताबिक वो बहुत अच्छी लेंथ पर बॉल करता है, अटैक करना जानता है। इसको पहले सलीम मलिक और फिर वसीम अकरम ने आखिरी ओवर्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। वनडे के फर्स्ट पावर प्ले के अंदर और फिर आखिर के 5 ओवर्स के अंदर जिस तरह वो आखिरी 4 ओवर्स करता था वो कोई स्पिनर नहीं कर सका। सन 1999 का इंडिया का दौरा जहां बहुत सारी वजूहात की बिना पर यादगार रहा, वहीं इसमें सकलैन मुश्ताक की कारकर्दगी बेहतरीन रही। दौरे में सकलैन ने 3 मैचों में 24 विकेटें लीं जिसमें 2 मरतबा 10-10 विकेटें शामिल थीं। मोइन खान इस दौरे में विकेट कीपर थे और इन्हें ये दौर आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। वो कहते हैं कि सकलैन का दौरा इंडिया तो कमाल था, चेन्नई में 10 विकेटें हासिल की और हम वो मैच जीते। सबको पता है कितना मुश्किल मैच था। सचिन तेंदुलकर कितने आराम से मैच लेकर जा रहा था। इस मौका पर बॉल को सिर्फ टॉस करना किसी लेजेंड के जहन में आ सकता था, किसी ऐसे बंदे के जहन में जो खुद रिस्क लेना जानता हो और जिसको खुद पर भरपूर एतमाद हो। इसने वो बॉल की और वसीम अकरम ने कैच पकड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, मुरली काउंटिंग के साथ मुरली से मुवाजना करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले श्रीलंकन ऑफ स्पिनर मुरलीधरन भी दूसरा सीखने का क्रेडिट सकलैन मुश्ताक को देते हैं। एक इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि 1995 के दौरा पाकिस्तान में मुझे सकलैन मुश्ताक के दूसरा ने काफ़ी मुतासर किया था। सकलैन उम्र में मुझसे छोटे थे मगर फिर भी मुझे इनसे इस गेंद के हवाले से बात करने में कोई आर महसूस नहीं हुई। सकलैन ने मुझे ये गेंद सिखाई मगर मुझे इसे मास्टर करने में 3 साल लग गए और जब मैंने दूसरा करना शुरू किया
तब भी मैं टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल कर सका। सन 1997 में सकलैन ने सिरे काउंटी ज्वाइन कर ली थी और 1974 के बाद सिरे को न सिर्फ पहली मरतबा बेंसन एंड हेजेस कप जितवाने में मदद दी, बल्कि इस ग्राउंड पर मिडिल सेक्स के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। यहाँ इंग्लैंड के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर के साथ इनकी जोड़ी ने खूब रंग जमाया और 1999 के बाद से 3 मरतबा चैंपियनशिप टाइटल जितवाने में मरकजी किरदार अदा किया। सीरी टीम के कप्तान साबिक टेस्ट क्रिकेटर एडम हॉलीओक भी सकलैन के परस्तार निकले। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कभी जब मुझे डिक्लेरेशंस करने में मुश्किल होती थी और लगता था कि स्कोर बोर्ड पर रन्स कम है, तो सकलैन मुझे हिम्मत दिलाता था और कहता था कि भले आखिरी दिन 250 का दिफा करना हो, हम मैच जीत जाएंगे। तभी मुझे लगता था कि सब कंट्रोल में है और हम वाकई जीत जाते थे। सन 2001 में मोइन खान की क़यादत में नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में पहले टेस्ट में कामयाबी और दूसरे को ड्रा किया था। सकलैन की पहले टेस्ट में 8 विकेटों और दूसरे में वाहिद सेंचुरी ने सीरीज़ ड्रा करने में अहम किरदार अदा किया था। इस सीरीज़ में सकलैन के सिलेक्शन पर सवाल उठे, मगर उन्हें साथ ले जाया गया, जहां उन्होंने कारकर्दगी दिखाकर नाक़िदीन को खामोश कर दिया। 2003 के आलमी कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद वसीम अकरम, सईद अनवर और वकार यूनुस रिटायर हो गए थे, जबकि इंजमाम और सकलैन को घर भेज दिया गया था। दानिश कनेरिया और शुएब मलिक की मौजूदगी से सक्की किस्सा पारीना बनते गए। सकलैन ने बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में कम बैक किया, मगर सिर्फ 2 विकेटें हासिल की। इनका आखिरी टेस्ट भी इस ग्राउंड में 7 माह बाद इंडिया के खिलाफ खेला गया। 2004 में सकलैन के घुटने के दूसरे ऑपरेशन ने इन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया और वो धीरे धीरे सीन से ही गायब हो गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सकलैन ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और पाकिस्तान की कोचिंग संभालने से पहले तक